evening. I am Sharad sir. Today we will discuss about SS lesson number 8. The name of the lesson is natural resource. First of all, we will discuss about what is resource. Right? Resource. Anything lying in nature. Everything is not called a resource. There are a lot of things lying with nature, but everything cannot be called as resource. Then what is resource? Those things or substances from where we are getting advantage or a lot of benefit out of it after utilizing our skill, intelligence and wisdom, and we are taking some benefit out of it, it is called resource. अभी नेचर में, धरती पर, कुदरत में बहुत सारे चीज वस्तु पड़ रहा है, लेकिन हर कोई वस्तु को हम रिसोर्स का मतलब क्या है? संपदाएं नहीं कहेंगे। जो वस्तु हमारा काम पे आता है उसको हम बोलेंगे रिसोर्स। वस्तु कैसे काम पे आता है? रिसोर्स तो लाखों साल से धरती पर पड़ा है, लेकिन those things are proved to be resource only after the development of science and technology or industrial revolution. The mind of man matured and developed. Man struggled with the nature and learnt a lot of things. आदमी प्रकृति और कुदरत के साथ संघर्ष करके बहुत सारे चीज आदमी ने सीखा, बराबर। और इन दिस वे मैन ट्राइड टू अचीव एंड एक्वायर एडवांटेज यूजिंग दोज रिसोर्सेस। समझे? तो समथिंग विल बी कॉल्ड एज रिसोर्स फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग advantage out of it, or we get some utility out of it after utilizing our intelligence, skill and knowledge. Barabar? That is called resource or meaning of resource. Next come uses of resource. Without resource today, the modern world cannot be functioned. आज के जमाने में बिना रिसोर्स में हम बिल्कुल एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते. We are habituated, we are addicted with resources. Resources need to live our life, right? So there are different type of resources: individual resource, national resource, global resource, right? तो resources अभी हम देखेंगे resource as food, बराबर? Resources as raw material, resources as energy, resources as food. What food? What kind of food we are getting from nature? All the food articles that we are using in our daily life are called resources, like cereals, pulses, vegetable, fruits, oil seeds, medicines, perfumes, cotton, right? Jute, tea, coffee, tobacco, all things we are getting from nature. So these are called as food. We are using for our health all these things. Next come raw material. Many industries are functioned by raw material and those raw materials are collected from nature. बहुत सारे इंडस्ट्री को कच्चा माल हम कुदरत से कलेक्शन करते हैं और all those industries are functioned by these raw materials. ये raw material हम पाते कहाँ से? जैसे कि कोल माइन, आयरन ओर, एल्यूमिनियम, जूट, कॉटन, शुगर कैन, राइट? तो एग्रीकल्चर एंड एक इंडस्ट्री दो प्रकार होता है, एग्रो इंडस्ट्री एंड मिनरल इंडस्ट्री, राइट? सो many minerals we are collecting from nature and we are also getting a lot of things from agriculture, right? So ऐसे raw material भी हमको पेपर, sugar mill, paper mill, food processing industries, cold drink, biscuit, cake, right? And iron steel industry, aluminum industry, soap industry, detergent industry, everything, chemical, fertilizer, pharmaceuticals, all these are industries for which we are collecting the raw material from the नेचर। हम कुदरत से ये सारे इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल कलेक्शन करते हैं। उसके बाद आ जाओ एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स क्या होता है? पावर। एनर्जी रिसोर्स जैसे कि कोल माइंस, मिनरल ऑयल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, दीज आर कॉल्ड मिनरल्स। वी आर कलेक्टिंग इट फ्रॉम द नेचर, ओके? उसके बाद और भी है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बराबर? बायोगैस एनर्जी, ऑल दीज थिंग्स वी आर आल्सो कलेक्टिंग फ्रॉम नेचर. दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी रिसोर्सेस. तो ये एनर्जी रिसोर्स कहाँ? इंडस्ट्रियल पर्पज में, डोमेस्टिक पर्पज में, कंस्ट्रक्शन पर्पज में हम लोग इसको यूज करते हैं, बराबर.
इंडस्ट्री चलता किससे? एनर्जी से, बराबर। डोमेस्टिक, हम घर में लाइट चलाते, टीवी चलाते, फैन चलाते हैं, आयरन बॉक्स चलता है, कुकर चलता है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ऑल दीज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइसेस आर फंक्शन बाय एनर्जी ओनली। ये सब एनर्जी के जरिए ही चलता है, राइट। नेक्स्ट कम टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स 3 प्रकार होता है। इंडिविजुअल, जो मेरा है, खुद का है, ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरा है, ये गाड़ी ये मेरा है। द ओनरशिप बिलोंग टू माई सेल्फ, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। लैंड एंड हाउस, नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स सेकंड वन इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्स। द ओनरशिप बिलोंग टू द नेशन, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, these are called as national resource. Then come global resource, बराबर। ग्लोबल रिसोर्स क्या होता है? ऑक्सीजन, सनलाइट, रेनफॉल। हम ये सबको नियंत्रण, जो विच इज आउट ऑफ कंट्रोल, जो हमारा नियंत्रण में नहीं, जो पूरा विश्व में फैला हुआ है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ओशन वाटर, राइट। ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज ग्लोबल रिसोर्स, बराबर। नेक्स्ट वी विल सी प्लानिंग ऑफ रिसोर्स। व्हाई देयर नीड्स प्लानिंग ऑफ रिसोर्स? हमको रिसोर्स प्लानिंग का जरूरत क्यों पड़ता है? व्हेनेवर वी आर फीलिंग समथिंग स्कैरसिटी, हमको अगर कोई चीज की कमी महसूस होता है तब हम उसको प्लानिंग करते हैं। इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड। ऐसा समय आएगा कंप्लीटली रिसोर्सेस विल बी खत्म हो जाएगा, सारे रिसोर्स खत्म हो जाएगा, बराबर। तो तब हम क्या करेंगे? इसीलिए रिसोर्सेस को प्लानिंग वे में यूज करना है, जैसे कि डैमेज नहीं होना चाहिए। वी मस्ट हैव टू डू जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स, सोच समझ के रिसोर्सेस का यूज करना है, बराबर। इसलिए सरकार ने प्लानिंग बनाया। प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेस के लिए रिसोर्स प्लानिंग किस तरह होता है, बराबर। अभी हम बात करेंगे हाउ इज रिसोर्स प्लानिंग कि ऐसे देर आर मेनी पॉइंट्स रिगार्डिंग इट। प्लानिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इन डिटेल वी विल डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी, यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड एंड प्रोबेबल रिसोर्स। कहां पर रिसोर्स है, कितना है, इन फ्यूचर ये रिसोर्स, ये हमारे लिए रिसोर्स हो सकता है क्या, ये सब चीज के बारे में हमको ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट, द रिसोर्स विच आर लिमिटेड, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लिमिटेड है, ऐसा कि कितने दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा, देन वी शुड हैव टू यूज इट जुडिशियसली, कॉशियसली। हम इसको सोच समझ के यूज करना, नहीं तो उसका अल्टरनेट हमको खोजना है, बराबर। तीसरा नंबर हमको बोल रहा है, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्स द क्वांटिटी ऑफ विच कैन बी इंक्रीज। ऐसा भी कितना रिसोर्सेस है जिसका क्वांटिटी अगर हम कोशिश करेंगे तो द क्वांटिटी विल बी इंक्रीज। ये ऐसा कैसा है? फॉरेस्ट रिसोर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, डेयरी फार्म, गटेरी, पिगेट्री, पोल्ट्री फार्म, हॉर्टिकल्चर, बराबर। ये सब, ये रिसोर्स को, या रिनोवेशन ऑफ वाटर बॉडीज और लैंड, ये सब का हम बढ़ा सकते हैं, बराबर। बंजारा जमीन, एरिड और सेमी एरिड रीजन्स विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्टाइल लैंड्स, बराबर। तो हम लोग को प्राणी, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, उसका संख्या हम बढ़ा सकते। हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री करेंगे या प्लांटेशन करेंगे तो जंगल का एरिया को भी हम बढ़ा सकते हैं, बराबर। उसको, ये जो रिसोर्सेस है, इट विल बी इंक्रीज, द एरिया विल बी इंक्रीज विथ आवर अटेम्प्ट, विथ आवर एफर्ट्स। फोर्थ पॉइंट, रिसोर्स विच आर चीपर, जैसे कि अभी रेत, ग्रेनाइट, मार्बल, हमको लगता है ये सब मुफ्त में मिलता है, उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मनमानी यूज करेंगे और खत्म कर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं करने का, बराबर। नेक्स्ट कम फिफ्थ पॉइंट, दोज रिसोर्स विच आर लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व, फाइंडिंग इट्स अल्टरनेट अटेम्प्ट थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज फेवरेबल इन लॉन्ग टर्म। ऐसे भी कितना रिसोर्सेस है जो हमेशा जरूरत ही पड़ेगा, बराबर। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, उसको हम सोच समझ के, संभाल के, रिसाइकिल करके व्यवहार करना जरूरी है। नेक्स्ट काम, नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म फॉर कंजर्वेशन एंड रिसोर्स एंड शुड बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली। गवर्नमेंट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in taking drastic actions
that resources should not be waste. रिसोर्स कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए, जिसके लिए सरकार को भी ध्यान देना, आम जनता को भी ध्यान देना, क्योंकि सरकार कोई आदमी नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है या कोई फैमिली नहीं है। सरकार एक विंग है, एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारे लिए हमेशा हमारा भलाई के लिए सोचता है। अगर हम लोग सब कोऑपरेट करेंगे तो गवर्नमेंट विल परफेक्टली फंक्शन। इफ वी विल नॉट विश, इफ वी विल नॉट डिजायर, then government becomes inactive. So first of all, we the people must be active and understand and awaken and be cautious about conservation and preservation of the resources. Then only it could be successful. Okay. Next come, so strict law and order system must be formed. Strict law and order system must be formed to protect and conserve and preserve resource. Last point, citizens should be well acquainted with all facts associated with rational use of resource and a public awareness should be cultivated. Rational use क्या होता? जहां जरूरी वहां पर यूज करना। मैं ये घर में हूं, लाइट फैन चल रहा है, जब मैं घर में नहीं हूं तो लाइट फैन बंद करके जाना है। रास्ता में वाटर पोस्ट है, बराबर, वाटर टैप मैंने खोल दिया, पानी पिया, वाटर टैप को बंद नहीं किया, चला गया, पानी ऐसे बह के जाती है। पानी को पाने के लिए पानी वेस्टेज हो गया। पानी, वाटर इज वेरी प्रेशियस एंड वैल्यूएबल एलिमेंट ऑफ नेचर एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन। हमारे देश में 50% विलेज को ड्रिंकिंग वाटर परफेक्टली नहीं मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर पानी वेस्ट करेंगे, तो ये सही नहीं है। इसलिए हम लोगों को रेशनल यूज करना, जहां पर जरूरी है, अति जरूरी, वहां पर ही यूज करना, जरूरी नहीं बंद करना। अगर हम रास्ता में जा रहे हैं, हमारा फ्रेंड आया, दोनों फ्रेंड एक दूसरे को मिले, एक्टिवा गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी स्टार्ट करके 15 मिनट तक वो लोग बात करते हैं। दिस इज नॉट रेशनल यूज ऑफ रिसोर्स। ये पेट्रोल वेस्ट होता है। हम गाड़ी बंद करके बात करने से चलेगा? हम घर में से जब बाहर जाते, फैन, टीवी, एसी सब बंद करके जाना है। unnecessarily electrical and electronic points should not be used if there is nobody else in the room. अगर घर में कोई है नहीं तो हम लोग इसको यूज नहीं करना है, बराबर। ये है रेशनल यूज ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट कम सॉइल फॉर्मेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस वेयर क्रॉप्स कुड बी ग्रोन। सॉइल एक ऐसा चीज है जहां पर क्रॉप्स ग्रोन किया जाता है। सॉइल का जो थिकनेस होता है 1 फीट के अंदर होगा, जो मदद करता है हमको विभिन्न प्रकार खेती बाड़ी करने के लिए। खाद्य शस्य, फूड ग्रेन्स आर ग्रोन बाय दिस अपर लेयर ऑफ द सॉइल। जैसे एप्पल के ऊपर रेड कलर का छिलका रहता है, ये अर्थ के ऊपर ऐसा एक छिलका है जिसको हम बोलते हैं सॉइल। तो ये सॉइल, ये एक मिस्टेरियस एलिमेंट गिवन बाय द नेचर। ये सॉइल हमको चावल देती है, ये सॉइल हमको गेहूं देती है, ये सॉइल एप्पल भी देता है, ये सॉइल करेला भी देता है, भिंडी भी देता है, मूंग देता है, उड़द देता है, तुवर देता है। ऑल काइंड्स ऑफ फूड इटेबल्स वी आर गेटिंग फ्रॉम सॉइल। यही सॉइल पे गन्ना लगाओ होगा, करेला लगाओ होगा, बटाना लगाओ होगा, रतालू लगाओ होगा, पटाटो, टमाटो, एनीथिंग। इस सॉइल के पास ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक है दैट सॉइल दे आर गिविंग आज ऑल काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स। So it is most important element of nature. बराबर? Earlier we have discussed there are 5 elements of nature. Soil plays most important role for the growth of vegetation. Okay? So मैं आपको ऐसा बोलूंगा, soil, how soil is soil formation. मैंने soil के बारे में बताया, अभी देखेंगे soil formation. How soil is formed. आज हम 40-50 फीट नीचे खोदाई करेंगे, हमको soil मिलता है। ये सॉइल बनने के लिए करोड़ों साल लगा नेचर को, कुदरत को, बराबर। तो ये सॉइल कैसे बनता है, अच्छा अभी हम डिस्कस करेंगे। ये सॉइल ऐसे बनता है, देयर आर 3 मेजर सीजन्स वी एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ। within 1 year we experience 3 मेजर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, बराबर। तो पहाड़ में जो पत्थर होता है, समर सीजन में इट एक्सपांड्स, व्हेन रेनी सीजन कम्स इट contract, expansion, contraction, expansion, contraction। expand करना मतलब चौड़ा होना, contraction सिकुड़ जाना, सिमट जाना। तो continuously expansion, contraction, expansion, contraction, it happens since crores and lakhs of years
it creates a crack within the body of the rocks. बराबर? And the rocks are full of minerals because these rocks are formed due to the lava those came out of the interior of the earth. ये पत्थर हम देख रहे हैं, पत्थर वल्कानिक इरप्शन की वजह से लावा से बनाया होता है और ये कंटिन्यूअसली जब ठंडी गर्मी होता है, अगर हम कोई डंडा को ऐसे ऐसे करेंगे पकड़ के कंटिन्यूअसली 50 बार करेंगे वो डंडा टूट जाएगा. जस्ट लाइक दैट इंक्रीजिंग रेट ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीजिंग रेट ऑफ टेम्परेचर, दिस फेनोमेना happens continuously and it creates crack within the body of the rocks, and in this way the cracked rocks are rolling down from the top of the mountains to the foothill areas, and they are having accidental position with one another and they are becoming into dust formation. बराबर? छोटे छोटे टुकड़ा होकर एक दूसरे के साथ एक्सीडेंट होता, छोटे छोटे टुकड़ा होकर ये क्या होता है, जमीन में मिल जाता. Then these small rock pieces and pebbles, they come in contact again with humidity, temperature, water, rainfall, ये सब के contact में आता है. Then it is coming in contact with humus. What is humus? Humus is that decaying decomposition of the body part of plants, animals and insect. पेड़ पौधा, जानवर, इंसान, कीड़े मकड़े जब मर जाते हैं उनका डेड बॉडी मिट्टी में मिलता है और ये क्या करता, कोई भी चीज को खोखला कर देता है और ये जो पत्थर है पूरा गल जाता है और डस्ट फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज द सिस्टम ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. ओके, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय दिस वे एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू नाउ. बराबर? मैंने आपको बताया सॉइल फॉर्मेशन की एक्सपांशन कंट्रैक्शन की वजह से पत्थर टूटता है, पहाड़ के ऊपर से रोलिंग डाउन होते नीचे आता है और विभिन्न प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशन, वाटर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, बराबर, विभिन्न प्रकार केमिकल मिट्टी में, ये सब के साथ कांटेक्ट में आने के बाद ये मिट्टी बन जाता है. एंड ह्यूमस एड्स विथ इट बिकम्स सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप. दिस इज कॉल्ड एज सॉइल फॉर्मेशन. बराबर? तो मैंने सॉइल बताया, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ पार्ट इज कॉल्ड सॉइल, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं. सॉइल फॉर्मेशन भी मैंने आपको बताया. अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल. ओके, सॉइल टाइप को आईकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च हैव डिवाइडेड द सॉइल टाइप इनटू 8 पार्ट्स. ओके, the Indian soil profile is divided into 8 types. First of all, we will discuss alluvial soil. Alluvial soil: red soil, black soil, laterite soil, desert soil, mountain soil, forest soil and marshy soil. Alluvial soil holds 43%. Alluvial soil we will find in the Gangetic and northern plains of India. It is in between the peninsular plateau and the great Himalayas. Where there are river sides, you will get plenty of alluvial soil. Alluvial soil is divided into 2 parts. It holds 43% of the total soil of India. Khadar and Bangar. Bangar is old alluvium and Khadar is new alluvium. Bangar is away from the river areas and Khadar is very nearer to river areas. Barabar? So Bangar is strong and sticky and Khadar is soft. Both the soils are having, to somehow this is having different characteristics, but both of them are useful for growing good crops. Alluvial soil is very much useful for growing crops like paddy, wheat, sugarcane, jute, all these things. Okay, so there is more proportion of potash, phosphoric acid and limestone in this soil. There is less proportion of nitrogen and humus in this type of soil. So wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize and oil seeds, यानी कि pulse oil seeds could be grown in this type of soil. Next come red soil. Red soil holds 19%. It could be found plentifully in the peninsular India and some northeast part of our country. Red soil is also having, the red color of the soil is due to the presence of ferric oxide inside it. Barabar? So such soil found in some parts of Rajasthan. The soil is red in color due to the presence of ferric oxide. It becomes yellow as we go down. Lime, gravel, carbonate are found here. Crops like
millet, cotton, wheat, jowar, linseed, groundnut, potato and onion are grown in this type of soil. The third one is called black soil. Black soil is of having 4 names: black soil, black cotton soil, regular soil and self-flowing soil. Okay, so the formation of black soil you will find more in Maharashtra, South Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The formation of red soil is due to the lava from the Deccan Plateau. We will find black soil in Deccan Plateau and Malwa Plateau. Barabar? And I have told you the states having black soil. Black soil is fertile. It is rich and fertile. Its black color is due to the lava. This soil originated from lava. Okay, and it is made out of igneous rocks. Okay, so it is having in Gujarat, Surat, Bharuch, Narmada, Vadodara, Tapi, Dan district have this type of soil. Lava rocks and climate play an important role, and this is having lime, more proportion of iron, lime, calcium, potash, aluminium, magnesium carbonate in this type of soil. Crops like cotton, linseed, mustard, groundnut, tobacco and urad are grown in this type of soil. बराबर, ये सब क्रॉप्स होता है, ये सबसे फर्टाइल सॉइल माना जाता है, सबसे बेस्ट कॉटन का क्रॉप इस सॉइल में किया जाता है. बराबर. नेक्स्ट कम लेटराइट सॉइल. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लटर मींस ब्रिक. इट्स रेड कलर इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड. व्हेन दिस सॉइल बिकम वेट इट बिकम स्मूथ लाइक बटर. बराबर. ये क्या है? ऐसे सॉइल है, हेवी रेनफॉल होता है जहां पर ऊपर का जो मिट्टी कीचड़ निकल के चला जाता है और नीचे जो पथरीला जमीन रह जाता है उसको बोलते हैं लेटराइट सॉइल. बराबर. ये लेटराइट इज ए ग्रीक वर्ड लेटर एंड राइट. लेटर का मतलब which means a brick. बराबर. सो इट इज फाउंड इन पेनिनसुला. जहां पर हमको रेड सॉइल देखने को मिलता है वहां पर भी हमको लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है. इट इज वेरी मच nearer. Laterite soil are mostly found nearby the red soils. Okay, it is less fertile, but cotton, paddy, ragi, sugarcane, tea, coffee, cashew nut can be grown here. Then comes desert soil. Desert soil is also called as arid soil and semi-arid soil. बंजारा जमीन जहां पर होता है. Most probably desert soil are found in northwestern मध्य प्रदेश, नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात, राजस्थान, साउथ वेस्टर्न पंजाब, ये सब एरिया में हमको डेजर्ट सॉइल देखने के लिए मिलता है. डेजर्ट सॉइल इज आल्सो लेस फर्टाइल. ओके, इट इज एरिड एंड सेमी एरिड, लेस फर्टाइल. इट इज सैंडी. इट कंटेन्स मोर डिजर्व्ड मटेरियल. राजस्थान, हरियाणा, सदर्न पंजाब, गुजरात, this type of soil found in Kutch and part of Saurashtra. Okay, यहाँ पर crops like millet and jowar could be grown. The desert soil is not so much profitable or advantageous. Most probably crops are not expected from desert soil. Okay, desert soil के बाद come on mountain soil. ये 2700 से 3000 meter altitude from ocean water level this soil is found. It is less fertile. बराबर. हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न सेवन सिस्टर स्टेट्स आर एंडाउड विथ दिस माउंटेन सॉइल. ओके, सो माउंटेन सॉइल में टी, कॉफी ये सब ग्रोइंग किया जाता है. बराबर. नेक्स्ट कम पाइन एंड चीड ट्रीज आर फाउंड इन माउंटेन सॉइल. नेक्स्ट कम फॉरेस्ट सॉइल. इज फाउंड इन 3000 to 3100 meters altitude. Himalayas, Sayadri, Eastern Ghat and Terai region of Himalaya. The surface of earth is covered by the shaded leaf trees and upper part of this tree. ये सब एरिया को यहाँ पर क्या है, ऊपर का ब्लैक कलर होता है सॉइल और नीचे रेड कलर और ब्लू ग्रीन कलर का मिट्टी हमको देखने के लिए मिलता है. किसमें? फॉरेस्ट सॉइल में. नेक्स्ट कम मार्सी और पिटी सॉइल. ये क्या है? जब हम ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते हैं, हम कहीं कहीं जगह पर देखते हैं कि पानी होता है और पानी के अंदर पेड़ पौधा होता है. घुटना तक पानी होता है, उसके अंदर पेड़ पौधा होता. वहां पर फिर जब समर सीजन आता है वो पानी सूख जाता है. वहां पर जो
biotic elements collected by and brought by the rainwater are deposited there. Actually those are fertile soil, but due to water stagnation in those areas, पानी हमेशा जमा होकर रहता है, इसलिए 2-3 महीने के लिए वो हमको वो जगह वैकेंसी मिलता, तभी राइस या जूट ऐसे कोई खेती 3-4 महीने के अंदर कर देने के बाद फिर वो पानी में डूब जाता है। इसको बोलते पीटी सॉइल और मार्सी सॉइल। मार्सी लैंड का मतलब क्या? दोज लैंड विच आर टोटली कवर्ड बाय वाटर एंड इन बिटवीन वी विल फाइंड सम प्लांट्स आर कॉल्ड एज मार्सी। नेक्स्ट कम soil erosion. Okay, soil erosion. What is soil erosion? Soil erosion क्या होता है? Transfer of soil, displacement of soil and removal of soil from one place to another place by some natural agents like running water and wind. मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह को जब ट्रांसफर किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता, रिमूव होता, ट्रांसफॉर्म होता, उसको बोलते सॉइल एरोशन। उसको करने के लिए बारिश का रनिंग वाटर या तो हवा, बराबर, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सॉइल एरोशन की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है? हमारा बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर ऊपर का सॉइल चला जाता है तो क्रॉप अच्छा नहीं होता है, बराबर। टू गेट गुड क्रॉप वी शुड हैव टू हैव गुड सॉइल। अपर लेयर ऑफ द सॉइल मस्ट बी फर्टाइल, मस्ट बी एनरिच्ड विथ ह्यूमस। अगर ह्यूमस नहीं है और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, पोटास, सुपर ये सब नहीं है तो अच्छा फसल नहीं होगा। इसीलिए सॉइल एरोशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम, बराबर। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सो वी शुड हैव टू चेक सॉइल एरोशन, बराबर। सॉइल एरोशन को चेक करने के लिए मेजर टू प्रिवेंट सॉइल एरोशन, कंट्रोल ग्रेजिंग एक्टिविटी। एक जमीन पर हम कंटिन्यूअसली गाय, भैंस, भेड़, बकरा चराते, उखाड़ के जो घास वगैरह, पेड़ पौधा सब खा जाते। नाउ द लैंड बिकम्स विदाउट प्लांट और ग्रास। तब वो वहां पर जब एनिमल्स कूदेंगे तो क्रैक होके मिट्टी पाउडर बनेगा, बाद में हवा इसको उड़ाकर ले जाएगा। सेकंड पॉइंट, प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट। कंटाउर मेथड। कंटाउर मेथड क्या है? जिगजैग करके हम प्लांटेशन करेंगे, इसको बोलते हैं कंटाउर मेथड। ऐसे इन दिस वे वी विल मेक प्लांटेशन। थर्ड वन, प्लांट ट्रीज इन फॉलो लैंड। जो बेकार जमीन है, पड़ा है, कोई काम का नहीं होता, वहां पर प्लांटेशन कर दो। तो प्लांटेशन हम लोग 9th स्टैंडर्ड में बेटा पढ़े हुए हैं कि एनवायरनमेंट इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इज मोर देन दैट ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। हम जितना पैसा नहीं कमाते पेड़ पौधों से, एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए उसका 4 गुना फायदेमंद है। इसलिए लोग घर के अंदर भी पेड़ पौधा रखते हैं, छोटे छोटे प्लांट भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, इट कंट्रोल्स पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। पोल्यूशन हवा को कंस्टेंटली इट पुल्स, बराबर। सो एनीवेयर वी शुड हैव टू प्लांट। तो फॉलो लैंड मस्ट बी कवर्ड बाय प्लांट एंड देन कम कंस्ट्रक्ट चेक डैम। हमारा बुक में भी पिक्चर दिया है चेक डैम। स्टेप 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 करके हम लोग को पत्थर का दीवार बनाना है, जो पानी स्पीड में आता है उसका स्पीड को कंट्रोल करेगा, और लास्ट मोमेंट को, लास्ट बैंक के पास जब आएगा वो पूरा स्लो हो जाएगा। तब जितना मिट्टी कीचड़ अपने साथ लाया वो वहां पर ही रुक जाएगा। सिंपल पानी जब स्लो हो जाएगा, पानी ऊपर से चला जाएगा और मिट्टी रुक जाएगा। इन दिस वे सॉइल एरोशन विल बी कंट्रोल्ड। और मिट्टी को, जमीन को हम डीपली प्लोइंग करेंगे, ताकि जब बारिश होता है पानी अंदर अंदर पर्कोलेशन होगा। वाटर पर्कोलेशन विल इंक्रीज इफ वी विल फ्लो द लैंड डीपली। अगर हम जमीन को जोताई, प्लोइंग डीपली करेंगे, गहराई से, तो वो क्या करेगा? पानी को अंडरग्राउंड वाटर लेवल में जमा रखेगा। पानी बहकर नहीं जाएगा, पानी वहां पर सोक करेगा, नीचे पर्कोलेशन होगा, बराबर। नेक्स्ट काम सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के लिए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार का सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट बनाया, जिम्मेदारी भी दिया। much more responsibilities vested in the hands of those people, in the hands of soil conservation department, बराबर। पैसा भी बहुत उसमें खर्चा होता है। soil conservation means prevent the soil erosion and maintain its quality. soil conservation is directly connected to retain the soil particle at their original place. soil conservation क्या है? मिट्टी को अपने जगह में रहने देना, मिट्टी को अपना जगह से दूसरे जगह को ट्रांसफर होने में रोकना। To stop the
transfer of soil from its original place because we want to grow good crop. अगर ऊपर का मिट्टी चला जाएगा तो अच्छा खेती हमको नहीं मिलेगा. Different remedies are used at different place in the world. दुनिया में विभिन्न प्रकार जो रिलीफ फीचर होता है धरती का, जैसे कि 7 कॉन्टिनेंट है, अलग अलग कॉन्टिनेंट का जमीन भूमि रूप लैंडस्केप्स are of having different type of geographical endowments. So as per the location of the geographical endowment, we have to follow the process how to preserve and how to protect the soil without being damaged. We will try to stop soil erosion, for which we have to follow certain process, certain methods, right? So remedies of soil conservation. The root of the tree in forest cover hold of the soil particle. मिट्टी प्लांटेशन इसलिए करने को सरकार बोलता है, प्लांट का जो जड़ होता है ना वो मिट्टी को कस के पकड़ता, तो जहां पर प्लांट कवर है वहां से कभी सॉइल एरोशन नहीं होता. प्लांट ट्री इन द रिवर गॉजेस, नदी बह के जाती है, नदी के दोनों तरफ से आपको देखा होगा हर वक्त मिट्टी, बड़े बड़े पीस मिट्टी उखाड़ के ले जाता है मिट्टी पानी में. अगर हम नदी के दोनों साइड में, दोनों बाजू में प्लांटेशन करेंगे, दोनों मिट्टी को, दोनों साइड में मिट्टी को, नदी का दोनों साइड का मिट्टी को पकड़ के रखेगा. इसीलिए ज्यादातर गांव में हम देखेंगे नदी के बाजू में बड़े बड़े प्लांट होता है, बराबर. बनियन ट्री, पीपल ट्री, नीम का ट्री, ये सब वो मिट्टी को मजबूत से पकड़ के रखता और नदी मिट्टी को उखाड़ के नहीं लेता. ए सीरीज ऑफ ट्री शुड बी ग्रोन नियर द डेजर्ट. अभी हम लोगों ये भी देखो डेजर्ट लैंड होता है, जो डेजर्ट में सैंड स्टॉर्म्स होता, रेतीला तूफान. सैंड स्टॉर्म का मतलब रेतीला तूफान. ऐसा डेजर्ट एरिया से, रेगिस्तान से इस तरह आएगा, तूफान आएगा तो हजार हजार ट्रक लोड में लोड रेत लेकर डेजर्ट से लेकर बाहर अच्छा जमीन पर फेंक देगा. जो जमीन में वो गिरेगा वो जमीन, फर्टाइल जमीन, वो बेकार हो जाएगा. क्योंकि अगर जब हम प्लोइंग करेंगे वो रेत अंदर घुसेगा तब फसल, जो रूट ऑफ द प्लांट कैन नॉट प्रोग्रेस वेयर देयर इज सॉइल, मतलब सैंड, समझे. इसीलिए सरकार ने क्या बोला, रेगिस्तान का जो बॉर्डर इलाका होता है वो बॉर्डर इलाका में लाइन लाइन करके प्लांटेशन करो. ऐसे 50-60 लाइन, उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे, एकदम 25, 30, 40, 50 किलोमीटर लंबा एरिया एकदम हम लोग अगर प्लांटेशन करेंगे तो जो रेत आएगा रेगिस्तान से वो प्लांट से टकराएगा और नीचे गिर जाएगा. और फर्दर इट कैन नॉट गो अहेड एंड इट कैन नॉट डैमेज द फर्टाइल लैंड वेयर गुड क्रॉप्स आर ग्रोन. जहां अच्छा खेती हम ग्रोइंग करते वो जमीन को बर्बादी से बचाना. एंड द लास्ट पॉइंट रेमेडी इज डाइवर्ट द वाटर ऑफ पेरेनियल रिवर. वाटर शुड बी डाइवर्टेड टू सीजनल रिवर्स. पेरेनियल रिवर क्या होता है? एवर फ्लोइंग रिवर, जो नदी को साल तमाम पानी मिलता है. बारिश का पानी बारिश के दिन में मिलता, एंड इन विंटर एंड समर वी गेट ice melting water. Those are called perennial river. Most probably these are originated from Himalaya mountain range. इसलिए अगर कोई नदी में एक्सेस पानी होता और कोई नदी में सूखा रहता है तो दोनों नदी को जॉइंट करना है. The water resource will be distributed within the citizens and we will do its judicious use of this water resource. Okay? In this way, my dear students, next we will see methods like horizontal cultivation, terrace farm. Humus content should be added to the soil which lost its fertility. By implementing the remedies, soil can be conserved. The conservation of soil is strong, necessary today. बराबर. टेरास फार्मिंग, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग, इसको फॉलो करना है. और सॉइल, मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया था सॉइल के बारे में हम जो पढ़ाई किया. सॉइल एक बहुत प्रेशियस, ऐसे समझ लो माटी देवतार पूजा, एक लेसन है हम पढ़े थे, माटी देवतार पूजा, बराबर. ये बंगाली में और उड़िया में एक किताब है. माटी देवतार पूजा का मतलब ये होता है मिट्टी, सॉइल इज वर्शिप ऑफ गॉड, क्योंकि सॉइल में से सब कुछ मिलता है. हम जो बड़ा हुआ छोटा बच्चा से ये मिट्टी का खाना खाकर बड़ा हुआ है. ये मिट्टी से जो खेती उपजाऊ होता है उसको हम खाते हैं, उससे बुद्धि विवेक ज्ञान मिलता है, उससे हम शरीर बुद्धि होता है,
उससे बोन बनता है, उसमें हम छोटे बच्चे से बड़े हो जाते हैं। इसलिए मिट्टी सबसे मूल्यवान है, कीमत है। इसके अंदर इतना मूल्यवान चीज छुपा हुआ है, इसलिए उसका कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस लेसन इज कंप्लीटेड एंड वी विल वंस अगेन मीट with another lesson that might be 16 lesson and ज्यादातर मेरा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।